Hello and assalamu alaikum and welcome to another episode of PodFast, where we have sparkling conversations with experts, activists, and everyday people trying to make a positive impact in their community. And today we have a very special guest, one of our very own and our best and brightest, Dr. Hammad Naveed, Director, Lahore Campus. Assalamu alaikum sir, क्या हाल है? भाई साहब बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे हो सुबह सुबह आपको हमने उठा दिया. pretty late but it's summer summer में जल्दी है yes So, let's start off with, because a lot of people, I know you've had a pretty open door policy, if past is any indication. But I think still a lot of people don't know that you're a fasting yourself. So let's, start off with that. How, I know it's like a full circle for you. Starting off as a student and now you're sitting at the highest level of administration in a campus. So how was that for you? Like, how did it start out? Like, fast के आपके 4 साल किस तरह के थे? अच्छा पता है a lot of people don't know कि मैं 4 साल से पहले भी फास्टियन था मेरी जो सिस्टर है she was in the first batch of Islamabad campus तो पहले मैं pick and drop ड्यूटी था तो I was associated with fast since then उसके बाद 4 साल Islamabad campus from 2001 to 5 we used to have a much smaller batch हमारे 100 odd बच्चे थे the Islamabad campus at that point was in a 4-story building everybody knew everybody we used to play table tennis in the hallway where table tennis कम खेल रहे होते दूसरों को मार ज़्यादा रहे होते थे क्योंकि वहाँ से हर कोई गुजर रहा होता था so basically it was a very close knit family और I think that the values that we got from that close knit family because हर बंदे का मसला पता है तो you feel empathetic sympathetic to them not in the sense कि आपने छापा दे दिया but in the sense कि you feel each other's pain I think that helped a lot तो pain इतनी थी by the way जितनी आप लोगों को feel हो रही है it has not changed तो it was quite rigorous and in fact by the end of the 4 years I had decided not to study ever कि पढ़ लिया बस जितना पढ़ना था but then that's part of life teaches you more things so वो 2-1 साल industry में लगाए and then back to academia in terms of PhD but to answer your question amazing time we actually cried on the last day of our university which we usually don't cry most अभी भी नहीं करते थे तो वो because just of that family sense जो थी तो basically like अभी तक सब connected है 80% of our batch is in the US we're all connected जो इसकी उस वक्त लड़ाई भी हो गई थी वो भी अब ठीक हो गया है obviously तो a lot of water has passed under the bridge तो well amazing time so I'm glad that you yourself know the essence of keeping those connections alive. Something that FAST I think still focuses on. Especially on alumni relations. So fast forward, when you came back when did you start teaching back at FAST? 2017. So how was that transition like coming back to FAST now, but now as a professor? So the reason was. But it wasn't that I always planned to come back, to be honest. I mean, I was a research faculty at University of Chicago. I mean, I was setter and all. But somehow, Trump got elected. So मैं Chicago में होता था. And that was the time when I decided कि नहीं, this is not doable. Racism ज़्यादा हो गया था and all that. बच्चे बड़े हो रहे थे. But once I decided कि बस we have to go back. उससे पहले भी 1-2 बार ट्राई किया था लेकिन वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट थी टू बी ऑनेस्ट वंस आई डिसाइडेड तो आई जस्ट उसके बाद फिर मुझे पता था कि पहले ऑप्शन फास्ट ही होगी तो एक ईमेल की थी इस्लामाबाद के डायरेक्टर को उन्होंने कहा जो तो एंड दैट्स हाउ इट वाज कि जब मैं पहले दिन आया था तो मुझे अपनी सैलरी नहीं पता थी मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट पहले दिन ज्वाइनिंग के दिन पता चला था कि कितनी सैलरी है मुझे नहीं पता था इससे पहले So once I came back, the good thing about FAST is that it gives you space. यहाँ के structures इस तरह के नहीं हैं कि आप कोई नया कोर्स पढ़ाना चाहो तो प्रॉब्लम होगी या अप्रूवल का प्रोसेस बहुत लंबा होगा
I think I taught 8 new courses in the first 5 semesters after coming back. तो वो जो मेरी जर्नी थी in terms of intellectual development, that didn't stop because I was still learning as well. जब नया कोर्स बनाते हैं, there's a lot of effort that you have to put in. So because of that, I enjoyed, and to be honest, kids are brilliant here. वहाँ पे भी यही बच्चे जाते हैं, वहाँ से 1-2 जाते हैं. यहाँ पे आपके पास 40 की क्लास होती है, उसमें से 25 तो अच्छे ही होते हैं, बाकी 15 पीछे बैठते हैं, खैर है. लेकिन बाकी 25 जो है, they actually fuel your growth as well. तो this not many people talk about, to be honest, कि it helps you personally. अगर बच्चा अच्छा है ना क्लास का, और फास्ट का बच्चा ऐसा है कि अगर आपने अच्छा कोर्स नहीं पढ़ाया या बहुत माठा कोर्स रखा है और कुछ नहीं सिखाया, तो आपके फीडबैक में लिख देता है कि मैंने इससे कुछ नहीं सीखा. And I don't know how many people know, students, we actually read these feedbacks, particularly the ones that are in the comments, जो कि free text होता है. Islamabad में तो we used to actually publish them among our faculty, the best 10 comments and the worst 10 comments, without naming, of course. लेकिन जिसके लिए आया होता है उसे पता होता था कि क्या आ रहा है. So that's a lot of space. बाकी universities के अंदर getting a new subject approved is a crazy task. हमारा बहुत सिंपल चीज़ है ये. इट्स जस्ट मैंने ये पढ़ाना है, ये आउटलाइन है, इसमें इतनी चीज़ की ये वेटेज है. एचओडी से बात की, एचओडी ने डीन को भेज दिया, डीन ने वहाँ से अप्रूव कर देना. जो इलेक्टिव्स हैं ना, वो हमने रखे इस तरह हुए हैं कि ये इवॉल्व हो. वी डोंट वांट टू कीप द सेम इलेक्टिव्स. और उससे हमें इंडस्ट्री से रेलेवेंट होने में भी मदद मिलती है और फैकल्टी को पर्सनल ग्रोथ भी मिलती है उससे. सो that's द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग न्यू कोर्सेज kept me going with research as well. और मेरे जो कोर्सेज थे वो रिसर्च से रिलेटेड थे. मतलब जो मैंने रिसर्च वाले बच्चों को पढ़ाना था, वैसे ही वो मैं क्लास में पढ़ा देता था, 10 बच्चे और सीख लेते थे, तो प्रेप हो जाती थी उसकी. Coming back to the transition again, then there was another transition that, from a professor to holding like one of were you in HOD over there? नहीं, मैं कभी भी HOD नहीं था. So like how did this transition happen कि okay, fast Lahore, एक जिधर मतलब मैं इस तरह पर, जैसे आप उधर कह रहे हो कि वहाँ पे तो एक स्केल एक थोड़ा सा एक स्टूडेंट्स का या एक हर चीज़ का एक थोड़ा कम था, और यहाँ पे इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक स्केल एक आई थिंक इट्स अ कपल ऑफ टाइम्स मोर. इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए. अब ज़्यादा हो गए. चले इन टर्म्स ऑफ आई वुड से a bit more harsh environment. ठीक है, तो Lahore is a bit more. So फिर ये transition कैसा था कि from being a professor to now being in a more harsh environment in terms of everything and holding the highest level of an administration position? So as long as you remember where you have come from, what you felt as a student, that helps you a lot. Because as long as you remember that you're here for the students, not for the administration, not for anything else, you're here for making careers, that helps you make decisions with that perspective. कि क्या मैं यहाँ पे आया हूँ इस सीट को बचाने, या इस सीट पे बैठे ही रहने, या मैं आया हूँ कि 15 बच्चे किसी अच्छी तरफ को लग जाए. किसी ने हमारी उंगली पकड़ के एक तरफ लगा दिया था तो यहाँ तक पहुँच गए. अब मेरा काम है कि आगे 15 बंदों को पकड़ूँ. As long as you have that perspective, you have to be a mentor more than a teacher. I think that helped. और मैंने कोशिश की है कि ओपन डोर पॉलिसी का मकसद भी ये था कि किसी को अगर मसला है तो if he can't talk about it, then what's the use of all these structures? तो आपने भी नोटिस किया होगा, there are a lot more sports structures now. Medical center है, psychologist है, student center is much more accessible. मेरा डोर भी है. HODs को कोशिश किया है कि इंकरेज किया जाए. कुछ यंग वाले लगे हैं, अब जाके एनर्जी होती है यंग में. एज यू एज आप में वो एनर्जी नहीं रहती. यू सीन एवरीथिंग. तो कोशिश किया थोड़ा सा यंग ब्लड इंजेक्ट हो. एंड जस्ट बेसिकली इंकरेजिंग दीज यंग फैकल्टी मेम्बर्स, टू बी ऑनेस्ट. तो वो दैट होल प्रोसेस इज़ रिवॉर्डिंग इन इटसेल्फ. जब आप कैंपस की जर्नी फिर देखना शुरू कर देते हो, पहले अपनी जर्नी में अपनी देख रहे होते हो, फिर आप कैंपस की देख रहे होते हो, और स्टूडेंट की फीडबैक कॉन्स्टेंटली आ रही होती है. चाहे सोशल मीडिया है, चाहे पर्सनल ईमेल्स हैं. मतलब ढेर ईमेल्स है मेरे पास पड़ी हुई कि क्या क्या हो गया और क्या रहता है अभी. तो आई थिंक दैट पर्सपेक्टिव कि आप मेंटोर हो, नॉट अ डिक्टेटर,
दैट विल टेक, और ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी पहले हार्श थी यहाँ पे, और ये इट्स बीन फॉर अ व्हाइल, आई डोंट नो व्हाई कुछ हुआ एक ज़माने में, शायद मुझे थोड़ा आइडिया है क्या हुआ, लेकिन दैट्स नॉट फॉर पब्लिक कंजम्पशन, तो बट वो उसको ठीक करने के लिए टाइम लगता है, एंड आई थिंक वी हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, और इंशाल्लाह आप देखोगे आगे वाले बेहतरी है, तो दैट पर्सपेक्टिव आई फील इज इम्पोर्टेंट. I hope so, inshallah. And no doubt there has been a change in the wind, I would say, since the last couple of years. No doubt. I mean, you can ask any alumni or you can ask any student from my batch or previous batches. So they definitely felt a change in the atmosphere. I mean, a couple of alumni that came on our homecoming, they felt a big change in the atmosphere. तो नो डाउट दैट्स देयर एंड लेकिन सर इसकी मतलब बात फिर भी यहाँ पे आ जाती है क्योंकि यू डिड दिस, हाउ आर यू मेकिंग श्योर दैट यू नो दिस इज़ गोइंग टू बी अ प्रोग्रेसिव थिंग, या आगे भी ऐसे होगा? हैव यू मेड सर्टेन चेंजेस और डू यू थिंक लाइक नाउ इट्स हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन कि अब ये चीज़ बेहतर से बेहतर होगी कि नहीं होगी? अनफॉर्चुनेटली जो स्ट्रक्चर है ना फास्ट का, दैट इज टॉप हैवी, द गाय एट द टॉप टेक्स द डिसीजंस. हम अनफॉर्चुनेटली डिवॉल्व नहीं कर पाए पावर बहुत ज़्यादा, और इस तरह के स्ट्रक्चर में आई फील सक्सेशन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वरना रिवर्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो अपनी तरफ से कोशिश है सक्सेशन प्लानिंग की. आई मीन यू प्लान एंड अल्लाह प्लान्स, गॉड नोज. तो यस वी ट्राइड के वो सक्सेशन प्लानिंग ये है कि आप HODs को उस तरफ लेके आए जिस तरफ आप चाह रहे हैं. तो वो एक बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली आप देखते हैं कि वो बाकी सब भी उसी में अडेप्ट कर लेते हैं. लेकिन यस सक्सेशन प्लानिंग, द गाय एट द टॉप विल डिफाइन कि कैसे ये आगे जाएगा कि नहीं जाएगा. तो दैट इज़ इट. उसके फ़ायदे भी हैं टॉप हैवी के, नॉट सिर्फ ये एक तो नुकसान है ना कि कल को चेंज हो सकता है रिवर्स, लेकिन उसके फ़ायदे भी बहुत हैं. फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उस टॉप लेवल की वजह से आती है. द टॉप गाय इज़ द फाइनेंशियल अथॉरिटी हियर, और उस फाइनेंशियल सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रेंट की वजह से GIK और हम इकट्ठे तकरीबन स्टार्ट हुए थे. दे गॉट मोर एंडोवमेंट फंड फ्रॉम द सेम सोर्स एज अस. आज वो गवर्नमेंट सपोर्ट पे हम 5 कैंपसेस हैं इंडिपेंडेंट, छठा स्टार्ट होने वाला है. तो वो फ्रूगल स्पेंडिंग एंड एक जगह लीकेज नहीं है कहीं पे फंड्स की, वो इस वजह से फ़ायदा भी होता है आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के. लेकिन ये कि ये मसले आ जाते हैं तो यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल कि आप नेक्स्ट बंदा कैसे चूज़ करें, कहाँ लगा रहे हैं. वो यूजुअली वो पहले तो खैर बहुत लंबे लंबे टेन्योर होते थे, 10-10 साल के होते थे, तो इतना मसला शायद नहीं आता था, एक बंदा आपको मिल जाता. लेकिन आई थिंक वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है. 3 साल से ज़्यादा टेन्योर भी बहुत ज़्यादा इवेंचुअली टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि आपके जितने आइडियाज़ हैं आप लगा लेते हो, फिर एक तरह से स्टैग्नेंट आ जाते हैं. दुनिया बहुत जल्दी चेंज हो रही होती है, आपकी अपनी एनर्जी कम होती है. इट्स अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग जॉब. आई फील 3 साल में देयर इज नथिंग लेफ्ट आफ्टर दैट इन द टैंक. तो वो चेंज ज़रूरी है, बट इट हैज़ टू बी द राइट पर्सन. तो होपफुली मतलब चलो अब I'll shift gears and मेरे ख्याल से I'll actually ask questions that a lot of people, Fastians, really have as students, you know, कि those come here and go every day. Why is there such a bad stigma revolving around the life in fast? I mean, it's not that bad. It is, but it's not that bad. So why is there such a strong stigma regarding that? I mean, आप बड़ा openly अगर मैं आपसे बात करूँ, you have a lot of emails, you have a lot of feedback, you can see everything that happens and the feedback that comes on our social media. You post anything new and the backlash is more than what you're getting at reception. So why is that so? नेचुरल है. पहले से जो चीज़ें चल रही हैं साथ, ऑफ कोर्स एक ज़माना था जिसमें हम अलुमनाइज को डिसोन कर दिया था. No doubt. हमने कैंपस में एंट्री बंद कर दी थी. Exactly. तो वो अब एकदम से रिवर्स तो नहीं हो सकता ना. इवन दो वी स्टार्टेड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ट्राइंग टू इन्वॉल्व देम. वो बेचारे जिन बच्चों की 4 साल की हर्ट है जो यहाँ से होते हुए उनको आप जो भी दे दोगे उनको ज़्यादा फील होगा कि अब हमारे टाइम पे क्यों नहीं था.
So just to give you numbers, roughly 70 plus events happen on this per semester in the past 3 semesters. तो एंड ऑफ कोर्स वो डाइवर्स होते हैं, किसी को ड्रामा अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को प्रोग्रामिंग कंपटीशन अच्छे लगते हैं, किसी को सेमिनार अच्छे लगते हैं, किसी को वर्कशॉप्स अच्छी लगती हैं। ये सब मिला के, मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो यू हैव टू कैटर टू ऑल ऑफ देम। तो इनफैक्ट स्टूडेंट सेंटर से इतनी ईमेल्स आती थी कि बच्चों ने ईमेल चेक करनी छोड़ दी थी। तो फिर मैंने कहा भाई ये एक ईमेल ना करें, इन्हें क्लब कर दिया करें कि इस हफ्ते में क्या हो रहा है। तो इट्स दैट मच। तो वो फ़र्क यही है कि भाई टाइम होगा, अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है एटलीस्ट कि जितना कर सकते हैं, जितना हमारा स्पेस है। हम कंस्ट्रेंट सबसे बड़ा है कि हम रेजिडेंशियल एरिया में हैं, हमारी लिमिट्स हैं कि 8 बजे के बाद जो है ना आसपास के लोग आपके हमसाए उनका ख्याल रखना ज़रूरी है, आपका दीन भी कहता है और आपका फ़र्ज़ है कि आपने यहाँ से जगह तो नहीं चेंज कर सकते, यू हैव टू कीप देम कंफर्टेबल है। तो 8 बजे के बाद का मसला है यहाँ पे ऑलरेडी, बल्कि एंटरटेनमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब सोशल मीडिया पे ये आना शुरू हो गया है हमारे पास अलमनाई से कि किस तरफ को चल पड़े हैं आप लोग। तो इट्स गोइंग टू दैट अमाउंट नाउ कि फास्ट, और पहले ये होता था कि कुछ भी नहीं होता, वो कहते हैं कि इस तरफ को चल पड़े आप। सो या यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। और टाइम आता है कुछ चीज़ें आपको सुननी चाहिए और कुछ चीज़ें आपको पता है कि आपके पास नंबर्स हैं, लोगों के पास नंबर्स नहीं है। हमारी अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की अभी फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि सबको हम रीच कर रहे हो। इस बार एक कंसर्टेड एफर्ट है, इस बार हम पिछले 1 महीने में 1 मिलियन लोगों को रीच किए। यूजुअली ये अबाउट 20,000 होता है, तो वो लोगों को पता नहीं चलता। दैट्स प्रीटी मच इट कि आपने ज़्यादा मीडिया को स्ट्रॉन्ग करने बता देंगे क्या हो रहा है। तो कोशिश है, वी कीप डूइंग थिंग्स नाउ। तो that's pretty much it. It's more you have the solid numbers, don't go by impression. Ask the students, check their emails. तो नंबर्स तो वहाँ से आ जाते हैं, इसलिए हम वो फिर एक कोलाज बना के पोस्ट भी करते हैं कि इस सेमेस्टर में ये इवेंट हुआ। उस वक्त भी हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं ये कब हुआ। तो आप इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसमें लाइक सिर्फ बात ये आ जाती है कि आई फील लाइक देयर इज़ अ बिग गैप इन, अब I know कि fast doesn't advertise itself, it doesn't at all, लेकिन there is still a huge gap between like the administration communication जो एक, और मतलब ये जिस तरह की आप बात करें कि अच्छा ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई है सोशल मीडिया पे, और इस तरह हमारे अपने इन हाउस स्टूडेंट्स को ही नहीं पता, या अगर ईमेल नहीं चेक करेंगे तो फिर मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। नहीं, not regarding email but other social media platforms such as मेरे ख्याल से फास्ट का अगर इंस्टाग्राम पेज भी है, दैट्स नॉट वेरी एंगेजिंग विद दैट्स नॉट, मतलब अभी काफ़ी लोगों को मेरे ख्याल से, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ मेरा आधा बैच उस पेज को फॉलो भी नहीं करता। अच्छा, दो डिफरेंट है ना ऑडियंस आपने देखनी है क्या। अगर तो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके ऑडियंस जो करंट है, दे हैव टू चेक देयर ईमेल, they shouldn't be checking Instagram for updates. Instagram is not an official channel for updates, but that's an official account. It's an account for the rest of the world, not for my current students, not for announcements. So, but that's the difference. I think that, don't you think that helps in today's day and age? आपकी social representation कहाँ होती है? Not as a replacement for official emails. Obviously, not as a that's a mode of communication, no doubt. But I am talking about कि जिधर ये अभी भी बच्चों का कमेंट आ जाता है ना कि यार ये कब हुआ, ये किधर हुआ, उसका मैं यही रिस्पॉन्स दे रहा हूँ ना, ईमेल में चेक करो। इट कैन नॉट बी अ रिप्लेसमेंट कि हाँ, इट कैन ऑगमेंट व्हिच इट इज डूइंग, एंड इट्स प्राइमरीली फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट फॉर माय स्टूडेंट्स। इट्स प्राइमरीली फॉर आवर एफर्ट्स कि कल को आपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को दिखाने के क्या हो रहा है, आपने मे बी डिफरेंट बॉडीज़ आती हैं हमारी क्रेडिशंस, उनको दिखाने हैं कि कहाँ पे आपने ये बना के लगाया, उनके लिए। बट नॉट फॉर माई स्टूडेंट्स। आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, आई वुड से कि भैया अगर आपके पास, अगर मेरे स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम है कि वो इंस्टाग्राम देख सकते हैं और ईमेल नहीं पढ़ सकते, then we're going the wrong way. So which is why the students have to do the official channel. Actually there are notice boards as well, उस पर भी आता है, but nobody reads the notice boards, I know that. And I also know कि emails भी नहीं पढ़ते, इसलिए हमने क्लब करके बजाय इसके साथ पढ़नी पड़े, एक टेबल आते हैं अब इस वीक के ये इवेंट्स हैं. I expect them to read at least that. Another major concern that I think I faced myself, I think a lot of other students face, and they will keep on facing,
I don't know for how long, is जो एक स्टूडेंट और एक जो एक फ्रिक्शन है मेरे ख्याल से between students, administration and maybe some faculty. तो ये फ्रिक्शन भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत ज़्यादा थी, एक टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थी, आई डोंट नो अब शायद कम हो गई हो, लेकिन उसकी क्या इतनी ख़ास वजह, या हाउ ये मतलब आपने इसको अगर आइडेंटिफाई किया कि यार इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन क्यों है, तो ये इसकी कम करने की या बढ़ने की वजह क्या थी और कम इसको किस तरह की? आई थिंक बढ़ने की वजह तो मुझे पता है क्यों थी, लेकिन वो ऑफर कर लेंगे डिस्कस ऑन एयर। यही मैं कह सकता हूँ कि द थिंग इज़ अ लॉट ऑफ द फ्रिक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ इवेंट्स आफ्टर 8 PM। आई थिंक उस पर थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम कोशिश करें कि एम्पावर करें। वैसे यहाँ पे यू जो फ्रिक्शन आपको ज़्यादा इसलिए फील करती है कि वी हैव एम्पावर्ड द स्टूडेंट्स टू प्लान, और जो स्टूडेंट्स प्लान करते हैं दे डोंट हैव द होलिस्टिक व्यू कि क्या क्या पॉसिबल है, और एवरीबडी ट्राइज टू स्टेप आउट ऑफ द बाउंड्री, तो फ्रिक्शन वहीं पे आती है। इस्लामाबाद कैंपस फॉर एग्जांपल, एवरीथिंग इज प्लान बाय द फैकल्टी। द फैकल्टी एडवाइजर plans the things, he's always there. Though I feel that is not very productive. क्या आप बच्चों को ही एक्सप्लोर नहीं करने दे रहे? यहाँ की जो सबसे एम्पावरिंग पावर चीज़ जो मुझे लगी कि बच्चे क्यों इतने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से निकलते हैं बाहर। इस्लामाबाद के बच्चे भी निकले, उन्होंने इतनी कंपनियाँ नहीं बनाई हैं जितनी लाहौर के वालों ने बनाई हैं। उसकी मेरे लिहाज से प्राइमरी इज़ दिस सोसाइटी को जो इतना फ्रीडम्स दिया गया। आप अपने जितने प्रेसिडेंट हैं उनमें से उठा के देख लो, अक्सर एंटरप्रेन्योर निकले। इवेंचुअली 2-3-4 साल बाद जाके उन्होंने कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लिया। एंड आई फील वो इसी वजह से था कि उनको लॉजिस्टिक्स, हैंडलिंग वगैरह वो सारा कुछ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आ गया था, वरना वो झिझक ही रहती है बंदे को, ये पता नहीं कहाँ से आएगा, ये पता नहीं कहाँ से आएगा, इसका क्या करना है, NOC कैसे लेने हैं, वो सारी चीज़ें। तो वो फ्रिक्शन इज़ नेचुरल, क्योंकि आप एक इवेंट कर रहे हो बड़ा, और उसमें आप चाह रहे हो कि शशका बहुत ज़्यादा हो, फुटफॉल बहुत ज़्यादा। फुटफॉल बहुत ज़्यादा करने के बहुत से तरीके हैं, और यूजुअली स्टूडेंट्स गो फॉर चीप टैक्टिक्स। सीधी सी बात है, वो एक लिमिट्स के आगे हमें करना पड़ता है। आई थिंक चेक एंड बैलेंस इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना चाहिए, बट ऑफ कोर्स यू शुड गिव फ्रीडमेंट। एंड आई हैव ट्राइड, आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ हीट माई सेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल के सर ये क्या हो रहा है, हो रहा है, बच्चों को करने दो, दिस इज़ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी लाइफ। बट वो एक चेक एंड बैलेंस फिर भी रखना पड़ता है। तो है, आई एम श्योर आपको भी फील होगा कि पहले से बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, लेकिन एक लिमिट के आगे नहीं। वो ज़रूरी है, क्योंकि वी डोंट वांट टिकटॉकर्स हियर, राइट? ऑब्वियसली आपको पता ही है कौन सी यूनिवर्सिटी किसके लिए मशहूर है। आई डोंट वांट कि हम टिकटॉक के लिए मशहूर होते हैं। नहीं, अच्छा, I'll be a bit more specific. I meant the friction that exists on a daily basis. कि I know मैं कहूँगा कि चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, लेकिन स्टिल मतलब मैं वो आई नो इट विल टेक टाइम एज वेल, लेकिन उसकी क्या वजह, एक डेली बेसिस पे जो फ्रिक्शन है, या एक डेली बेसिस पे जो एक एडमिनिस्ट्रेटर या फैकल्टी सर लोगों को अक्सर एक होते हैं, आपको अक्सर मेरे ख्याल से फीडबैक आता ही होगा कि सर मेरे साथ ये ज़्यादती हो गई, सर मैंने ये कर दिया, टीचर ने ये कर दिया, यही चीज़ें हैं। आई नो देर आर सम एग्जाम्पल्स टू कोट इवन। तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता? इज़ इट लाइक spreading a bit, because I'll be very open and blunt as well. I can safely say that there are faculty members, there is faculty that needs to be educated or have awareness कि the world is going in a very different direction, and ऐसा नहीं हो रहा जो अब मतलब एक जिस तरह एक उनका behavior है, the world is not working that way. तो उसमें what do you think like should you like spread awareness in the faculty or like जो सेशंस तो हम कर रहे हैं, इवन स्टूडेंट इंगेजमेंट सेशंस भी हम कर रहे हैं, बाहर से स्पीकर अपना भी नहीं, बाहर से मंगवा के करते हैं। लेकिन मैंने वो बताया ना, एज विद एज द अमाउंट ऑफ लर्निंग decreases. Even if I had to go do a PhD right now, I wouldn't be able to do that at the same rigor as what I did in 2007. So with age, और प्लस एक हमारी जनरल सोसाइटी का है, आप दादा से बात करके देख लो, कन्विंस कर पाते हो, तो इट्स द सेम।
इट्स द सेम, देयर इज़ अ लिमिट। उसका जो हम कर सकते हैं वो ये कि यंग फैकल्टी आपके सामने, उस काफ़ी यंग फैकल्टी आ गई है, बहुत शॉर्टेज थी, हमने तकरीबन लाहौर को साफ़ कर दिया, जितने अच्छे बंदे मिल सकते थे लेट ही हैं, तो यंग फैकल्टी की रेशो बढ़ गई है। लेकिन अगेन रिमेंबर ऑल ऑफ दीज एक्शंस हैव एन रिएक्शन एज वेल। वो यंग फैकल्टी की शायद फॉर एग्जांपल इलेक्टिव कोर्सेज पे उतनी ज़्यादा वो ना हो, पावर ना हो, उनकी उसके ऊपर ग्रिप ना हो, तो फीडबैक में हमें 2-3 का मसला आ रहा है फिर। तो यू कैन नॉट हैव अ लॉपसाइडेड सिस्टम, चेक एंड बैलेंसेस यहाँ पे रखने पड़ेंगे। फास्ट का ये अच्छी बात भी और शायद इस लिहाज में बुरी भी बात भी है कि हमारी जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। समबडी यूज इन द सिस्टम, खुद ही चला जाए तो चला जाए। हमारे पास जो विद इन द सिस्टम बहुत कम वो होता है कि हम किसी को निकालते हैं हम, तो विच इज़ अ गुड थिंग एंड विच इज़ अ बैड थिंग एज वेल। तो वो अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस कुछ हैं जिसको करते हैं हम। फीडबैक बच्चे असल में कम देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। द टॉप 10 एंड बॉटम 10 फीडबैक्स आर हाईलाइटेड टू द HODs बाय द क्वालिटी एनहांसमेंट सेल एंड सेंड टू मी एज वेल। And each of these 10 feedbacks, the HOD has to talk to the faculty member about the feedback. So a lot of that is done and put in the files and reflected in their annual increments as well. Okay. तो बच्चे असल में उनको लगता है कि शायद हमारा नाम आता है. It's completely anonymous. Until the grade is released, I can't even see that feedback. ग्रेड रिलीज होने के बाद हमें वो फीडबैक मिलती है ताकि हम चेक कर सकें क्या हुआ है क्या नहीं. तो दैट वी टेक दैट वेरी सीरियसली. डायरेक्टली इंक्रीमेंट्स के अंदर हो जाती है फीडबैक की परसेंटेज. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि सारे बच्चे उसको करें. फिर अभी तो सिर्फ सारे इकट्ठे बैठते हैं, ठक 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 ठक. मैंने खुद देखा है. तो वो शायद है फीडबैक बहुत लंबी, लेकिन मैं इस कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ. जिस बच्चे ने बैठ के 6 लाइनों का कमेंट लिखा है ना, इसका मतलब उसने अपना टाइम निकाला जिस पे वो इंस्टाग्राम देख सकता था और उसने बैठ के ही केयर्ड दैट मच अबाउट द कोर्स दैट ही रोट दैट. वो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ. बाकी तो मुझे पता है कि आप लोग बस क्लिक्स ही कर रहे होते हो. लेकिन तो वो ज़रूर गिव सम इश्यूज़, ख़ास तौर पे इश्यूज़. गुड थिंग्स भी लिखनी चाहिए, बट टीचर इंकरेज होते हैं, लेकिन बैड थिंग्स तो ज़रूर लिखनी चाहिए ना, ताकि अगली बार हमें पता चले. तो ये है. आई अंडरस्टैंड कि वो कुछ टीचर्स हैं, आई मीन उनका पर्सपेक्टिव ये है कि हम 25 साल से ये कर रहे हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, तो कुछ तो ठीक कर रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स कंपनियां भी बना रहे हैं, फेसबुक में भी जा रहे हैं, मेटा में भी जा रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये गलत है? तो वी टॉक टू देम, calm them down and try to do that. But personalities, हर personality different होती है. Some are receptive, some are not. So yes, there are issues and these will be there at every university, I can tell you. But we try to minimize with the ratio of young faculty, with new people, new technologies. मैंने अभी recently, अभी आपसे start होने से पहले faculty का placement program industry के अंदर discuss कर रहा था आपसे. And that is to upskill कि भाई जाके देखो दुनिया में क्या हो रहा है. जो आप produce कर रहे हो वो हैं क्या, करते क्या हैं वो जाके. So we are placing the industry in the faculty in the industry for 2 months in the summer, fully paid. When we are paying them and we are giving them off कि आप जाके कुछ सीख के आओ. We last time we did it in an online. We gave them online tools, educative के दिए थे, online tools for 23 faculty members. I felt कि उसमें push बहुत करना पड़ता है, self आपको discipline होना चाहिए. I feel this putting them in the immersive environment might even be better. इस बार का मेरा ये वाला तजर्बा है. तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं इस तरह का. There are faculty development programs. There are a lot of things going on, just to make sure that they realize what's going on outside. And then that's I think vital, क्योंकि even as students and even having a feedback from a couple of faculty members that came from abroad. I mean, I've had the good opportunity to study from a couple of teachers like that. And even they had the same feedback that it's it's very vital to actually know where the world is going. And we have a great name in the country and in the market,
that for for our graduates and for what we've done, for what we've accomplished. But if we're not gonna move side by side with the world, we're gonna lose that name. We're gonna lose that prestige. So I'm definitely glad that we're heading into the right direction. इसके अलावा सर ये बात है कि a lot of people know, I think the students know कि यार 4 साल का रगड़ा यहाँ पे is worth it. And it really helps going in like outside. अब ये एज अ स्टूडेंट तो चीज़ ठीक है, आपको 4 साल के बाद रियलाइज़ होती है जाके कि ओके यार मुझे इतना रगड़ा लगा था, एक अच्छी जॉब मिल गई यार, ये इधर कहीं ना कहीं जॉब तो मिल गई मुझे. बट हाउ डू यू गाइज सी दैट, या हाउ डू यू सी दैट इन दैट कि अच्छा यार कि ये प्रोसेस किस तरह का एक है सारा, कि अच्छा एक स्टूडेंट आता है, उसमें 4 साल हम मान देते हैं बिल्कुल, और मतलब उसके बाद इतना रिफाइंड होता है कि ओके पीपल really want that graduate in their companies. और इसके साथ साथ how you guys are like working on improving that entire process, like are you working, I know कि the university is really working on building very good alumni relations, so that's a big yes, but just another thing that how you guys are improving it and how do you see that? So placement की बात कर रहे हो कि कैसे प्लेस बेहतर करना है, या the whole learning experience of the both of them. So placement तो once the faculty is sitting in the industry, they are your placement office as well. अगर आपने किसी एक कंपनी के साथ जाके काम कर रहे हो तो कंपनी no longer has to come to the placement office to get access to the students. फैकल्टी से डायरेक्ट पूछ लेती है भाई मुझे ये 10 बच्चे इस तरह के चाहिए, give me CVs. तो actually the faculty becomes my placement office because of this as well, and will result in better placements. डेफिनेटली एक तो ये इसका साइड इफेक्ट है जो पहले से मुझे पता है जो होगा. जो इसके अलावा है, आई मीन वी हैव अ लॉट ऑफ बूट कैंप्स गोइंग ऑन इन द लास्ट. आप इमेजिन करो लाहौर के अंदर सारी यूनिवर्सिटियों ने हमारे पीछे लग के बूट कैंप शुरू कर दिए. पहले सब बात होती थी क्या करना है. वी हैव डन दिस फॉर द पास्ट 3 semesters between semester breaks, 4-5 boot camps on different technologies with good companies, industrial trainers, not my faculty. अभी आप फेसबुक पे सर्च करोगे यूटी का भी आ रहा होगा, सुपीरियर का भी आ रहा होगा, जिन्होंने इस साल शुरू किया. हम ये 3 सेमेस्टर से कर रहे हैं बड़ा रेगुलरली. वो इमिटेट करते हैं. फास्ट का साथ हमेशा ये होता है. इंटरेस्टिंग थिंग, HEC का जो करिकुलम में अगर आप जाओगे, एनसेक है नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल, उनके करिकुलम के अंदर जो कोर्स कोड लगे हुए हैं फास्ट के लगे हुए, इतना कॉपी लेते हैं हमसे लोग. तो इसलिए वो लोग, बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं जो बेहतर हो रही हैं. जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, आई थिंक उस जब वो आप बूट कैम्प कर रहे हैं, लेट मी कंप्लीट दैट, बूट कैम्प कर रहे हैं तो यू आर गिविंग एक्सेस फॉर 3 weeks और 6 weeks. 50 बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं. एक इंटरव्यू में आप घंटे में क्या कर सकते हैं जज, 1 घंटे का ही होगा मैक्सिमम इंटरव्यू, बट वंस यू आर इंटरेक्टिंग विद देम फॉर 3 weeks to 6 weeks, यू कैन जज देयर एथिक्स, जज के भाई कितना इनिशिएटिव लेता है. मैंने इधर तक कहा था, यहाँ तक करके ले आया, मेरे साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता. लिटरली हर बूट कैम्प के बाद 20 से 25% स्टूडेंट्स को उधर खड़े खड़े ऑफर लेटर मिल गए थे. बाकी सबने कोई नया टूल सीख लिया. तो वो हमारे साथ एक्स्ट्रा होते और इतने मिनिमल पेमेंट होती है, जस्ट इनफ सो दैट कि बच्चा हर रोज़ाना आके अटेंडेंस लगा ले. वरना बिल्कुल फ्री करेंगे तो हमारे बच्चों का हाल ऐसा है कि वो फिर. सो these 2 things themselves have resulted in placement. नंबर्स के हिसाब से लास्ट ईयर 17 days after the graduation 92% people were placed with an average salary of above 1 lakh. ठीक है. इस बार एग्ज़ाम्स के शुरू हुए थे. आई थिंक 2-3 एग्ज़ाम्स हुए थे आप लोगों के. तो इस प्लेसमेंट ऑफिस से एक ईमेल गई थी कि किसके पास ऑफर लेटर है, किसके पास वो है. 49% of students already had an offer letter in their hand or had started their job. So placement alhamdulillah is already good, but because of this reasons हमें वो जो bottleneck placement office से आती है, बहुत सी इंडस्ट्री से जवाब नहीं आता, हमें एक्सेस नहीं देते स्टूडेंट प्रोफाइल्स को, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एटलीस्ट मिनिमाइज हो जाएंगी, ख़त्म नहीं भी हुई तो. इस वक्त स्टूडेंट कैरियर सर्विसेज में एक डेडिकेटेड एलुमनाई ऑफिसर है, एक डेडिकेटेड इंटर्नशिप ऑफिसर है, जिसका काम करंट स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दिखाना है. इस बार हमने दिलाना है, हमारे पास जॉब फेयर के ऊपर 120 कंपनीज थी. अ लॉट ऑफ देम एक्चुअली कमिटेड कि हम आपसे इंटर्नशिप के लिए कमिट करके गए हैं कि इतने दिन को भी फॉलो अप प्लेस करें. हमारी कोशिश इस बार हर बच्चा प्लेस हो.
गेमिंग स्ट्रीम हम जो स्टार्ट करें उसमें गेमिंग इंडस्ट्री ने ऑलरेडी हमें कमिटमेंट दिया कि आपके जितने बच्चे गेमिंग स्ट्रीम में होंगे हम इंटर्नशिप देंगे, एवरी सिंगल वन। तो ये बात करने से होता है इंडस्ट्री के साथ, आप बात करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी खोलेंगे। आई एक्चुअली टॉक टू मोर देन 200 CEOs इन द लास्ट 2 years। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं खुद ही चला जाता हूँ या वो आ जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ खुद ही चला जाऊँ। सीम्स बेटर टू मेक दैट रिलेशनशिप। You have to work on the relationship. I mean, if I assume, if the bureaucratic tape is such के अगर मैंने बात करनी है और प्लेसमेंट ऑफिस से के थ्रू आए, प्लेसमेंट ऑफिस ने आधों को जवाब नहीं देना, आधों ने इस वजह से नहीं होना कि पता नहीं मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जब भी मेरा टाइम है, आई जस्ट एवरीबडी इज ऑन द व्हाट्सएप। एक दिन पहले कहो मैं आ रहा हूँ, आज सब लोग यही कहते हैं आ जाओ। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ। So you have to work on these things, and a lot of time, my time actually gets spent on this कि आपने कैसे connections बाहर बनाने हैं। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है टू बी ऑनेस्ट। इस बार हमने ऑलरेडी स्टूडेंट की एक्सपीरियंस के हिसाब से, I'm sure you saw we have a semester exchange program now in place with Oakland University, Michigan, a graduate transfer program with Oakland University, Michigan. There are 4 other universities that I would be announcing pretty soon. जैसे ही वो साइन होने वाले रह गए हैं, प्रेशर पुशिंग देम। तो ये कभी भी नहीं हुआ, 35 years से हम एग्जिस्टेंस में हैं, और ये पहली बार है ये फॉर्मली हो रहे हैं, ठीक है। तो बस ये सारा टाइम यही है, विद एन ओपन डोर। कभी कोशिश की है कि 15 मिनट से ज़्यादा वेट टाइम ना लगे किसी को कि कोई अंदर बैठा हुआ तो, एंड आई होप कि दैट्स बीन मेंटेन। तो दैट्स प्रीटी मच। ये चीज़ें देखोगे, आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता। इमेजिन द फैक्ट एंड दैट सेमेस्टर एक्सचेंज प्लान, जस्ट टू गिव यू सम मोर नंबर्स, दैट इज़ लोकल फी, लोकल जो US का रेजिडेंट पे करता है उसको, दैट फी इज़ अबाउट आई थिंक $11,000 फॉर द होल सेमेस्टर। वी हैव अ बिग alumni network in Michigan. We're trying to establish a fast house जिसमें लिविंग उस फास्ट हाउस में हो जाएगी। तो आपका जो आधा खर्चा है वो लिविंग का होता है, ख़त्म हो जाएगा। तो इट विल बी अ ह्यूज, मतलब फिर वो ये नहीं होगा कि जिसके पास पैसे हैं वो ही ले सकेगा। इट वुड बी मेरिट बेस्ड जिसको, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ इनफ फाइनेंशियल एड एंड डोनर्स कि हम कोशिश करेंगे दैट विल बी मेरिट बेस्ड, नॉट ऑन सेल्फ। लॉट ऑफ द ग्रांट्स दैट वी आर अप्लाइंग जो इनके ट्रैवल को भी फंड कर देगी और उसको। तो वो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन टाइम लगता है, करते करते होता है। तो यू विल सी मोर ऑफ दीज थिंग्स। It's a lot of good things to hear about. Like we've talked about a lot of things, a lot of good things, a lot of bad things. So, like, how do you see FAST? Just before wrapping up, I know you आपकी मीटिंग भी थी 10:15 से ऊपर ही चला गया टाइम। How do you see FAST in the next 10 years, 10-15 years? Like, जिसमें मेरे ख्याल से शायद ये चेंजेस एक्चुअली सोलिडिफाई हो चुके होंगे तब तक। तो फॉर वी हैव टू प्लान। अगर हम प्लान करके 3 साल का चले ना, मच मोर कैन बी अचीव्ड। अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट बीन एबल टू प्लान। वो जो सक्सेशन प्लानिंग एंड ऑल दैट, इफ यू फाइंड अ गुड प्लान, और बाहर की यूनिवर्सिटीज करती हैं, दे गिव अस, सो देयर इज अ टाउन हॉल, एवरी यूनिवर्सिटी हैज अ टाउन हॉल एवरी ईयर के स्टार्ट के अंदर कि दीज आर आवर एम्स फॉर दिस ईयर इन ऑर्डर टू गेट टू वेयर वी शुड बी इन 5 years। और रफली 80-85% वो अचीव करते हैं उस साल के। दे सेट दैट आउट फॉर द होल फैकल्टी, फॉर द होल स्टाफ कि इतनी ग्रांट्स इस बार हमने एम कर रहे हैं, उसके लिए हम ये आपके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं, ये वाला कैंपस खोल रहे हैं हम, उसके लिए यहाँ से पैसे आएंगे, इतने बच्चे इंक्रीज होंगे। दीज आर सॉलिड नंबर्स दैट यू गो बाय। वी डोंट डू दैट असल में, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस दैट आई कांट इवन स्टार्ट मेंशनिंग के क्यों। बट आई फील जब तक हम ये नंबर्स और ये गोल्स नहीं डालेंगे ना, आर पाथ वुड बी डिपेंडिंग ऑन द पर्सन एट द टॉप डायरेक्टर साहब। अगेन वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। आई फील द स्ट्रक्चर हैज़ टू बी सच के जो भी डायरेक्टर हो, जो भी रेक्टर हो, फास्ट उसी पेस से चलता रहे। जब तक वो चीज़ नहीं डालेंगे ना, दिस विल ऑलवेज बी अ चॉपी एंड राइड
कि कभी ऊपर चले गए, कभी नीचे आ गए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि बहुत पहले हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि CS की डिग्री ही हमने स्टार्ट की थी, तो अलुमनाई 60% जो CEOs हैं वो हैं ही फास्टियन, वो आते ही हमारे पास है। तो जो दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज कीप्स अस गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन एक्चुअली द स्पीड कैन बी मच फास्टर इफ वी प्लान। वो कोशिश करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, बट अनलेस दैट प्लानिंग इज इन प्लेस वी विल हैव दीज प्रॉब्लम्स। तो वो यही सारी चीज़ें ना, अभी हमने वी जस्ट स्टार्टेड टचिंग इंटरनेशनल लिंकेजेस, दीज कैन बी मच हायर। आई मीन मैं यही बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाहर जाके क्रेजी पब्लिकेशंस, क्रेजी अमाउंट ऑफ इंटेलेक्ट, या तो ऐसा है कि वो हमें पैसे देने, वहाँ पे तो हमें उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। मतलब वहाँ पे तो एक स्टूडेंट रखने के लिए इफ़ आई हैड 100,000 की ग्रांट फॉर अ ईयर, तब मैं एक स्टूडेंट रख सकता था। 4,000 स्टूडेंट है, वाई कांट आई मेक देम वर्क इन द सेम वे दैट वर्क। तो वो प्लान करके एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कोई कमी नहीं है आप लोगों में, मेरे स्टूडेंट में या हम में। वो बिल गेट्स जितने ही पढ़ते हैं, एलोन मस्क जितने ही पढ़ते हैं। और yes, the environment around us is not as conducive, but a lot can be still done. It's not an issue. I don't feel we blame the environment, we blame a lot of the things. हमने वहाँ पे पब्लिश किया है आफ्टर कमिंग बैक, जो मैंने कभी शिकागो में भी पब्लिश नहीं किया था, मेरे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल डूएबल। इट्स जस्ट कि आपने प्लान सही तरह करें, गिव देम सपोर्ट, दिस इज़ डूएबल। आप मेरे पिछले 3 साल में 10 बच्चे जा चुके हैं मैं फुली फंडेड मास्टर्स PhD के लिए। तो 10 से हम 100 क्यों नहीं भेज सकते? Exactly. We have 165 फैकल्टी मेंबर्स, नॉट जस्ट वन। तो मल्टीप्लाई करो इसको, तो उतने होने चाहिए थे फुली फंडेड मास्टर। और जाते हैं IIT से, दिस इज नॉर्मल। IIT कानपुर के बच्चे बेतहाशा जाते हैं। यू डोंट नीड स्कॉलरशिप्स टू बी ऑनेस्ट टू गो देयर। वहाँ की वंस यू आर सेंडिंग अ क्रिटिकल मास, वहाँ पे इतने लोग होते हैं। इंडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एसोसिएशन इज सो स्ट्रॉन्ग कि आप जिस दिन लैंड करेंगे ना किसी भी जगह पे, उनका एक बंदा आपको एयरपोर्ट से पिक करेगा, किसी के घर जाके प्लेस करेगा, एक आपको सोफ़ा मिल जाएगा, वो कहेगा यहाँ पे तुम सो भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, जो हम खाएंगे साथ खा लेना, सफाई तुमने करनी है घर की जब तक तुम्हें जॉब नहीं मिलती। यू हैव ज़ीरो एक्सपेंसेस टिल यू गेट अ जॉब। व्हाई कांट वी डू दैट? इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है ये सारी करनी, बट जस्ट एवरीबडी हैज़ टू। हमारे डायरेक्टर साहब कहते हैं अगर किबला सबका दुरुस्त हो ना, सारे एक तरफ को मुँह करके नमाज पढ़ें, नमाज बाजमात हो जाती है, अच्छी हो जाती है। वो बाजमात करना है, तो वो टाइम लगता है। Inshallah, I hope so. Thank you so much, sir, for your time today, and thank you so much for tuning in today. I hope you had insightful 40-50 minutes. And इंशाल्लाह आपको हम दोबारा कुछ सालों बाद दोबारा तंग करते रहेंगे, जिधर भी आप हों। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तब तक खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।